ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे पॉलीसैकेराइड्स की। पॉलीसैकेराइड इज़ अ पार्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, चैप्टर केमिस्ट्री, CBSE. Okay, so let us start with polysaccharides. What are polysaccharides? Carbohydrates which form large number of monosaccharides. Okay, as the term giving, poly means many. So these saccharides are made up of monosaccharides, many monosaccharides, and when they are hydrolyzed, they will be getting separated. ओके सो इसमें हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे स्टार्च का. स्टार्च इज नॉट न्यू टू अस, वी हैव स्टडीड इन 10th स्टैंडर्ड दैट स्टार्च इज अ स्टोरेज फूड ऑफ द प्लांट्स. प्लांट्स में जो स्टोरेज फूड होता है वो किस फॉर्म में होता है? स्टार्च के फॉर्म में होता है. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस इज इट इज प्रेजेंट इन सीरियल रूट्स एंड ट्यूबर्स. दिस इज अ टॉपिक विच इज समटाइम्स आस्क्ड फॉर 1 mark in a plain boards. So we should know what type of plants having the starch. It is a polymer of alpha glucose. Okay, so it is made up of alpha glucose, made up of amylose and amylopectin. Now this is important. So in the plain board, difference is asked between amylose and amylopectin. So before we go further for the structure of starch, let us see the difference. 2 mark का plain board का question आता है, very scoring and easy if you remember in this way. ठीक है, so let us see the difference between amylose and amylopectin. So this is the difference between amylose and amylopectin. What is amylose? Amylose is water soluble. Amylopectin is water insoluble. So this is about solubility of water. This is consisting of 15 to 20% of starch and amylopectin is 85% of starch. ठीक है, this is a starch, but in a starch amylopectin is present 85% and amylose is present consisting of 15 to 20%. थर्ड वन, इट इज़ द लॉन्ग अनब्रांच. अनब्रांच को आप स्ट्रेट भी बोल सकते हो. अमाइलोज जो है वो लॉन्ग स्ट्रेट चेन है, वेर एज अमाइलोपेक्टिन में यू कैन सी द ब्रांचेस. जब हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे ये और भी क्लियर हो जाएगा. सो अमाइलोपेक्टिन इज ब्रांच एंड अमाइलोज इज अनब्रांच और यू कैन से स्ट्रेट. Now the linkage. Amylose is made up of C1C4 glycosidic linkage. ठीक है, एक ही लिंकेज है, दैट इज द C1 एंड C4. पूरे मॉलिक्यूल में यही लिंक रिपीट हो रही है. ठीक है, पर अमाइलोपेक्टिन में ऐसे नहीं है. अमाइलोपेक्टिन में 2 लिंकेज है, एक C1C4 और दूसरा C1C6. तो C1C4 ये स्ट्रेट चेन फॉर्म करता है और जब वहाँ पे ब्रांचिंग बनती है तो ब्रांचिंग कैसे बनती है? C1C6 से. ठीक है, तो साइडवेज में जो स्ट्रेट मॉलिक्यूल बनता है वो C1C4 से बनता है, जस्ट लाइक अमाइलोज, और उसमें ब्रांचिंग फॉर्म होती है वो बनती है C1C6 से. ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस फॉर 2 marks बिटवीन द अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, इन अ बुक इट इज़ गिवन, बट इफ़ यू रिमेंबर इन दिस फॉर्म, पॉइंट्स के फॉर्म में, तो इट विल बी ईजी फॉर राइटिंग. समटाइम्स बोर्ड में स्पेसिफिक किया जाता है क्वेश्चन. कैसे? राइट द डिफरेंस बिटवीन amylose and amylopectin based on structure, or they will say structural difference between amylose and amylopectin. अब उन्होंने structural बोला है. structure means such a difference which will tell about structure. so वहाँ पे आपको ये 2 points लिखने पड़ेंगे, है ना, structure के ऊपर, कि एक branch है, you cannot write water soluble or insoluble, है ना. that is depending upon these 2 points are related to the structure. so sometimes to give the twist to the question they ask you structural difference. तो ये 2 points जो है, unbranched that is straight and secondary linkage, these are talking about the structural difference between amylose and amylopectin. so let us start with, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अमाइलोज का स्ट्रक्चर. ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोज, दैट हियर because they are polysaccharide, as I told, the chain will be of many, but this many we cannot show on a paper. so you can see this sign. this sign shows that it is the continue chain. it will be long chain on this side, है ना. ये साइन जो है वो कंटिन्यू चेन का है. वैसे ही यहाँ पे जो साइन है वो भी कंटिन्यू चेन बता रहा है. ठीक है, तो अब हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे अमाइलोज का. लेट अस स्टार्ट विथ हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर. बहुत ईजी है. तो सबसे पहले हमें क्या ड्रॉ करना है? सबसे पहले हमें ड्रॉ करना है अल्फ़ा डी ग्लूकोज. बहुत इजी है. यहाँ पे आपको 6 मेंबर चेन बनानी है, जिसमें से एक मेंबर ऑक्सीजन है. ये ऑक्सीजन बन गया. यहाँ पे क्योंकि अल्फ़ा डी है, वेरी इजी, यू मेक OH हियर
दिस इज द फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड दिस विल बी सिक्स। तो 6 कार्बन हो जाएगा CH2OH, इट इज H, ठीक है। एंड नाउ दिस इज द सेकेंड वन, दिस इज द थर्ड वन एंड दिस इज द फोर्थ वन, ये फिफ्थ हो, ठीक है। ये एक अल्फा हुआ। उसके बाद दूसरा ड्रॉ कीजिए। हम लोग यहाँ पे 3 ड्रॉ करके देखेंगे। ये कंटिन्यू होगा क्योंकि पॉलीसैकेराइड है, तो ये और एक OH हो गया, ठीक है। सारे अल्फा है, ये OH हो गया, ठीक है। ऑल आर अल्फा, सो इट इज़ वेरी इजी टू ड्रॉ, ठीक है। एंड नाउ वी विल राइट द थर्ड वन, और एक लिख लेंगे हम लोग। ये वी विल राइट दिस इज द थर्ड वन, so make it like this. Again OH, this is the first one, second, third, fourth and fifth and sixth. So here I will make OH, H, then OH, this H, OH, H, H and CH2OH. ओके, तो ये बन गए 3 अल्फा डी। अब फिर से मैंने जो आपको बोला था कि ये पॉलीसैकेराइड से बहुत सारी चेन, तो हम लोग क्या दिखाएंगे, ये फर्स्ट कार्बन है। लिंकेज क्या है, लिंकेज यहाँ पे है C1C4 लिंकेज, माने एक अल्फा का C1 तो दूसरे का C4, ठीक है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट है, ये फोर्थ है, तो ये यहाँ पे कंटिन्यू होंगी, तो यहाँ का H निकाल देंगे हम लोग, है ना। H2O माइनस होता है, तो ये H निकल के यहाँ पे हम लोग क्या दिखाएंगे, कंटिन्यू चेन दिखाएंगे, ठीक है। दिस टाइप ऑफ सिंबल विल गिव यू दैट चेन इज कंटिन्यू। और यहाँ पे लिंकेज फॉर्म होगी, ये है -H2O, और यहाँ पे बॉन्ड क्या मिलेगी, लिंकेज क्या बोलेगी, C1C4। अब क्योंकि ये भी अल्फा डी है, ये भी अल्फा डी है, इसको हम लोग बोलेंगे अल्फा लिंक, क्योंकि मॉलिक्यूल क्या है, अल्फा है। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, यहाँ पे भी H2O निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगी, C1C4 अल्फा लिंक, ये अल्फा लिंक हमें मिलेगी, ठीक है। और ये जब हम लोग इसी का स्ट्रक्चर देखेंगे कि ये अल्फा लिंक, यहाँ से H2 और यहाँ से H2 निकलने के बाद स्ट्रक्चर क्या बनता है, चिल्ड्रन, दिस इज द स्ट्रक्चर। नाउ यू कैन सी हियर आई हैव शोन दैट चेन इज कंटिन्यू हियर, हियर रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस। यहाँ पे इसको हम लोग अल्फा लिंक बोलेंगे, C1C4 है तो इसको C1C4 अल्फा लिंक भी बोल सकते हैं। सेम लिंक इज हियर एंड दिस विल बी कंटिन्यू। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोज, इसको अमाइलो स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। लेट अस स्टार्ट विथ नाउ अमाइलोपेक्टिन, ठीक है, सेकंड पार्ट ऑफ इट। सो वी विल गो फॉर अमाइलोपेक्टिन। सो लेट अस स्टार्ट विथ अमाइलोपेक्टिन नाउ। हियर यू कैन सी अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन में एज मैंने कहा कि यहाँ पे ब्रांचिंग होती है, माने एक स्ट्रेट चेन और एक ब्रांच होती है। तो यहाँ पे 2 टाइप के लिंकेज होते हैं, तो हम लोग दोनों टाइप के लिंकेज देखेंगे, ठीक है। अब दोनों टाइप के लिंकेज के लिए लेट अस सी इन अ शॉर्ट वे, ये मैं ड्रॉ करके बताऊंगी आपको। एक है C1C4 लिंक, तो C1C4 लिंक तो ईजी है, जैसे मैंने आपको अभी बोला था। आपको क्या करना है, यू हैव टू ड्रॉ द अल्फा डी, ये हम लोग अल्फा डी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये 2 अल्फा डी हो गए। अब मैं यहाँ पे लिंकेज दिखाऊंगी आपको। ये है फर्स्ट, ठीक है, ये OH था, और ये फोर्थ वाला OH, ये फोर्थ कार्बन है दूसरे अल्फ़ा का, ये फर्स्ट कार्बन है पहले अल्फ़ा डी का। उसके बाद यहाँ पे रहेगा OH, ये मैं एक अल्फ़ा डी का स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ठीक है। और ये फिफ्थ कार्बन है, तो ये बन गया एक अल्फ़ा ग्लूकोज, ठीक है। ये बन गया दूसरे में दिस इज़ द थर्ड वन, दिस इज़ द सेकेंड कार्बन, दिस इज़ द फर्स्ट कार्बन विच इज़ अल्फ़ा डी, तो नीचे रहेगा, ठीक है। ये CH2OH, ये हुआ H, और ये यहाँ पे पहली लिंकेज जो स्ट्रेट चेन है वो किसकी रहेगी, C1C4 की रहेगी, ठीक है। तो इसमें से H2O निकल जाएगा और वो लिंक क्या बन जाएगी, ये H2O निकल के यहाँ पे ये लिंकेज बन जाएगी O वाली, ठीक है। यहाँ से H2O निकल जाएगा और लिंकेज क्या बनेगी, ऐसे लिंकेज बनेगी ग्लाइकोसाइडिक वाली, ठीक है। तो ये बनेगी स्ट्रेट चेन। अब यहाँ पे ब्रांच फॉर्म होगी, ठीक है। तो ब्रांच कैसे फॉर्म होगी, अब ब्रांच फॉर्म होगी C1C6, तो इस अल्फ़ा डी का ये पहला कार्बन है, यू कैन सी हियर। अब मैं यहाँ पे और एक बनाती हूँ,
अब मुझे चाहिए C1C6, माने दूसरे कार्बन का C6 वाला है, तो मैं यहाँ पे बनाऊँ, ये C1 है। अब हम लोग बनाएंगे, ये बन गया C6 CH2OH, ये हाँ इसको ऐसे बनाएंगे, ठीक है। ये 5th कार्बन था, ठीक है, ये 6th कार्बन है, ठीक है, ये हुआ 4th, ये हुआ 3rd, ये हुआ 2nd और ये हुआ 1st, ठीक है। ये और एक अल्फा डी का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये देखिए, ये 6th वाला है, दिस इज द 6th कार्बन। इसका जो OH है, दिस OH विल गेट हाइड्रोलाइज विद दिस, यहाँ पे लिंकेज फॉर्म होगी, यहाँ से H2O निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ से H2O निकल जाएगा। तो ये हुआ C1 और ये हुआ C6, ठीक है, इनके बीच में लिंकेज फॉर्म होगी और यहाँ पे इसको बोलेंगे ब्रांच। ये स्ट्रेट हो गया C1C4 से, ये भी दोनों अल्फा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, C1C6 अल्फा लिंक, जिससे कि क्या बन रही है, ब्रांचिंग बन रही है, ठीक है। अगर हम लोग ये करते हैं तो वी विल गेट स्ट्रक्चर लाइक दिस। चिल्ड्रन यू कैन सी द स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रेट चेन जिसको हम लोग बोलेंगे C1C4 अल्फा लिंक। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं मार्क कर देती हूँ, इट विल मेक मोर क्लियर। यहाँ पे ये है 6 कार्बन, दिस इज द 6 कार्बन एंड दिस इज द 1st कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे 6 कार्बन हैज़ फॉर्म द चेन विद द 1st एंड दिस इज द लिंकेज विच इज कॉल्ड एज द ब्रांचिंग लिंकेज, दैट इज C1C6 अल्फा लिंक। सो दिस वॉज द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोपेक्टिन। तो स्टार्च किससे बना हुआ है, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन में। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।